अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 26 सूरत मोहम्मद की आयत नंबर 29 ता 38 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने की शरफ़त में करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन अल्लन युख़रिजल्लाहु अदग़ानहुम वलो नशाउ लअरैनाकहुम फलअरफ़्तहुम बिसीमाहुम वलतारिफ़न्नहुम फ़ी लहनिल क़ौल वलतारिफ़न्नहुम फ़ी लहनिल क़ौलि वल्लाहु यअलमु आमालकुम वलनबलुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन वनबलुव अखबारकुम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि वशाक्कुर रसूल मिन बादि मा तबय्यना लहुमुल हुदा मिन बादि मा तबय्यना लहुमुल हुदा लन यदुर्रुल्लाहा शैआ वसयुहबितु आमालहुम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू आमालकुम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि सुम्मा मातू वहुम कुफ़्फ़ारुन फलन यग़फ़िरल्लाह सुम्मा मातू वहुम कुफ़्फ़ारुन फलन यग़फ़िरल्लाहु लहुम फला तहिनू वतदऊ इलस्सल्मी व अंतुमुल आलौना वल्लाहु मअकुम वलन यतिरकुम आमालकुम। इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहबुन व इन तुहमिनू व तत्तकू युतिकुम उजूरकुम वला यसअलकुम अम्वालकुम। यस्अलकुमुहा
فيخفيكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: کیا جن کے دلوں میں بیماری ہے اس گھمنڈ میں ہے کہ اللہ ان کے چھپے بیر یعنی کہ دشمنیاں ظاہر نہ فرمائے گا، اور اگر ہم چاہیں تو تمہیں ان کو دکھا دیں کہ تم ان کی صورت سے پہچان لو، اور ضرور تم انہیں بات کے اسلوب سے پہچان لو گے، اور اللہ تمہارے عمل جانتا ہے، اور ضرور ہم تمہیں جانچیں گے یہاں تک کہ دیکھ لیں تمہارے جہاد کرنے والوں اور صابروں کو، اور تمہاری خبریں آزما لیں۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ہدایت ان پر ظاہر ہو چکی تھی، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے، اور بہت جلد اللہ ان کا کیا دھرا اکارت کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اور اپنے عمل باطل نہ کرو۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر کافر ہی مر گئے تو اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا۔ تو تم سستی نہ کرو اور آپ صلح کی طرف نہ بلاؤ، اور تم ہی غالب آؤ گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان نہ دے گا۔ دنیا کی زندگی تو یہی کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو وہ تم کو تمہارے ثواب عطا فرمائے گا، اور کچھ تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا۔ اگر انہیں تم سے طلب کرے اور زیادہ طلب کرے تم بخل کرو گے، اور وہ بخل تمہارے دلوں کے میل ظاہر کر دے گا۔ ہاں یہ جو تم ہو بلائے جاتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان پر بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج۔ اور اگر تم منہ پھیرو تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل لے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ ایمان و اطاعت اور مسلمانوں کی مدد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں حاضر ہونا، نفاق کی یعنی ان کی وہ عداوتیں جو وہ مومنین کے ساتھ رکھتے ہیں۔ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی منافق مخفی نہ رہا، آپ سب کو ان کی صورتوں سے پہچانتے تھے، اور وہ اپنے ضمیر کا حال ان سے چھپا نہ سکیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جو منافق لب ہلاتا تھا، حضور اس کے نفاق کو اس کی بات سے اور اس کے فحوائے کلام سے پہچان لیتے تھے۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ نے حضور کو بہت سے وجوہ علم عطا فرمائے، ان میں سے صورت سے پہچاننا بھی ہے اور بات سے پہچانا بھی، یعنی اپنے بندوں کے تمام اعمال ہر ایک کو اس کے لائق جزا دے گا۔ آزمائش میں ڈالیں گے یعنی ظاہر فرما دیں گے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ طاعت و اخلاص کے دعوے میں تم میں سے کون اچھا ہے۔ اس کے
बंदों को। और वो सदका वगैरह किस चीज़ का सवाब न पाएंगे, क्योंकि जो काम अल्लाह ताला के लिए ना हो उसका सवाब ही क्या। शान नज़ूल, जंग बदर के लिए जब कुरैश निकले तो वो साल कहत का था। लश्कर का खाना कुरैश के दौलतमंदों ने नौबत ब नौबत अपने ज़िम्मे ले लिया था। मक्का मुकरमा से निकलकर सबसे पहला खाना अबू जहल की तरफ से था, जिसके लिए उसने 10 ऊँट ज़बह किए थे। फिर सफ़वान ने मकामे असफ़ान में 9 ऊँट, फिर साहल ने मकामे कदीर में मकामे कदीर में 10। यहाँ से वो लोग समुंदर की तरफ फिर गए और रास्ता गुम हो गया। एक दिन ठहरे, वहां शीबा की तरफ से खाना हुआ, 9 ऊँट ज़बह हुए। फिर मकामे अबवा में पहुंचे, वहां मकबस जमही ने 9 ऊँट ज़बह किए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से भी दावत हुई। उस वक्त तक आप मुशर्रफ बा इस्लाम ना हुए थे। आपकी तरफ से 10 ऊँट ज़बह किए गए, फिर हारिस की तरफ से 9 और अबूल बख्तरी की तरफ से बदर के चश्मे पर 10 ऊँट। इन खाना देने वालों के हक में ये आयत नाजिल हुई, यानी ईमान और ताअत पर कायम रहो। रिया या निफाक से शान नज़ूल, बाज़ लोगों का ख्याल था कि जैसे शिर्क की वजह से तमाम नेकियां ज़ाया हो जाती हैं, इसी तरह ईमान की बरकत से कोई गुनाह ज़रर नहीं करता। उनके हक में यह आयत नाजिल फरमाई गई और बताया गया कि मोमिन के लिए इताअत खुदा और रसूल ज़रूरी है। गुनाहों से बचना लाजिम है। मसला इस आयत में अमल के बातिल करने की ममानत फरमाई गई। तो आदमी जो अमल शुरू करे, ख्वाह वो नफल ही हो या नमाज या रोज़ा या और कोई, लाजिम है कि उसको बातिल ना करे। शान नज़ूल, यह आयत अहले कलीब के हक में नाज़िल हुई। कलीब बदर में एक कुआं है जिसमें मकतूल कुफार डाले गए थे, अबू जहल और उसके साथी। और हुक्म आयत का हर काफिर के लिए आम है, जो कुफ्र पर मरा हो अल्लाह ताला उसकी मफरत न फरमाएगा। उसके बाद असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाया जाता है और हुक्म में तमाम मुसलमान शामिल हैं, यानी दुश्मन के मुकाबले में कमजोरी न दिखाओ। कुफार को करतबी में है कि इस आयत के हुक्म में उलमा का इख्तलाफ है। बाद ने कहा यह आयत वैन जनखू की नासिख है वैन जनखू की नासिख है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के सुलह की तरफ माइल होने को मना फरमाया जबकि सुलह की हाजत ना हो। और बाज़ उलमा ने कहा कि यह आयत मनसूख है और आयत वैन जनखू उसकी नासिख। और एक कौल ये है कि यह आयत मुहक्कम है और दोनों आयतें दो मुख्तलिफ वक्तों और मुख्तलिफ हालतों में नाजिल हुई। और एक कौल यह है कि आयत वेन जनखू का हुक्म एक मुअय्यन कौम के साथ खास है और ये आयत आम है कि कुफार के साथ मुआहिदा जायज़ नहीं मगर इंदुल ज़रूरत, जबकि मुसलमान ज़ईफ़ हों और मुकाबला ना कर सकें। तुम्हें अमाल का पूरा पूरा अजर अता फरमाएगा, नहायत जल्द गुजरने वाली, और उसमें मशगूल होना कुछ भी नाफे नहीं। हाँ, राह खुदा में खर्च करने का हुक्म देगा ताकि तुम्हें उसका सवाब मिले, यानी अमवाल को जहां खर्च करना तुम पर फर्ज किया गया है। सदका देने और फर्ज अदा करने में तुम्हारे सदकात और ताआत से, उसके फजल और रहमत के, उसकी और उसके रसूल की इताअत से, बल्कि नहायत मती व फरमाबरदार होंगे। मौजूद नाज़रीन, अल्लाह ताला के फजल करम से आज तक की यहाँ तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और उसका शान नज़ुल इख्तिताम पज़ीर हुआ। इसी के साथ सूरत मोहम्मद की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और उसकी शान नज़ुल इख्तिताम पज़ीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सिलसिले हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात की सिलसिले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला में कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा कराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला में चलने के तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियां दूर फरमाए, तमाम बीमार को कामना हिदायत फरमाए, तमाम मरमीन को अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला बाला मकाम अता फरमाए। आप तमाम मौजूद नाज़रीन से ये सलाह है कि ख़त्म नबूवत के सदक़े आपके पास एक अजीम मौका, आपको सुनहरा मौका मिले कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को खुद भी देखें, अपने बच्चों को तलकीन करें, अपने दोस्तों अजीज़ व अक़ारिब के साथ ज़रूर इस प्रोग्राम को यूट्यूब के चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसकी बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला कुरान पाक के सदक़े, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के सदक़े आपको और मुझे अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।